So in the last lecture, we have started the analytics, and then we initially started with the reports, and probably we have created. Okay, so we have created few of the reports also. Like if you see that we created a tabular report, this was the report that we created for this particular use case, and we just wanted to represent the fields from the account object. So we created this report. This is what. And then with respective to this report, we have understand, like, first of all, how to run the report, what does it means by running a report, and then what does it means by scheduling a report. Then, uh, how could we export the details. So when we export the details, I told you one thing, that whenever we export it to the Excel format, so there are some copyright informations are there. So if I wanted to hide that, so how could we do that? That is what the first thing. So let me show you. If you, first of all, let me try to export it once again. So initially I export this and see what I was talking about. So let me open this report and I'll show you something that in the last lecture also, like we want to open. Yes. So in the last lecture also, we have identified this thing. So this is the report what we have downloaded. Let me, make few of the formatting over here. And then, yeah. So, see, this is the report, this is the report. But if you just scroll it down, at the end of report, we see that there are certain copyright informations over here. Tabular report, use case number one, that's the name of the report, and then with all these details. So if you are downloading just 1 2 3 4 5, something like that, if you are downloading 4 to 5 reports and you wanted to remove this whole content, so one thing is that you could manually do it, just select and delete, that's it. So this is one way to do this, and of course it's most feasible way. Yes, right. But this is feasible only when we have to do this modification only in the few reports. For example, we have 5 reports, we have 10 reports, so doing this activity on 5 to 10 report is quite feasible. But let's say if we have downloaded 1000 reports, we have 500 reports daily. We and I mean, we have such a system where we download 500 reports on the daily basis. So it's really not possible, and we don't wanted this information to be get present everywhere. For example, it's like you downloaded 500 reports every day, and then you need to forward, you need to make some of the formatting like this. You need to make some of the formatting, and then you need to forward this report to somebody else. So okay, every time I just press this Control S button. So if this is the case, if we actually download on the everyday basis, we download the reports, we make some certain changes or other certain editing, and then we forward the report. But then at the same time, we don't want this copyright information to be get forwarded to that the third person, whatever. So one way is to do it manually, right? One way is to do this manually. Just select and delete. That is what I was telling. But it is feasible when you have only few of the reports with you. But for example, if you have like 500 report, 1,000 reports, it's obviously not possible. Even if you have 50 and 200 reports, then also it's a little bit time consuming job. Okay, going opening every report, and then deleting this data, and then once again saving this. So this is something which is a kind of time consuming job. So let's now talk about this. Inside the Salesforce, do we have any setting in such a way that we could download the report without this copyright information? If this is what the question is, so the answer is yes, we do have such kind of thing in the reports. So for that, we need to go to customize, and then we need to find here we need to find reports. So see, reports and the dashboard. This is what I was telling you. We'll just expand this, and you have something called as reports and dashboard settings. So what I have done, we have go to the setup menu. Inside the build menu, I just expanded the customize. Now within the customize, we need to see for reports and dashboard, and within that reports and dashboard, we have a setting called as reports and the dashboard settings. So just open this page. Now here you have something, confidential information disclaimer settings, right? Here we need to do this exclude disclaimer form formatted reports from the lightning printable. Actually, making this setting is much.
but in the lightning, if you wanted to do this in the both, in the as well as in the classic as well as in the lightning, then you could click this also. If you wanted to do the same thing in the lightning experience as well as in the Salesforce classic, presently doing this in the classic will actually signifies, but same could be done for the lightning also. So I'm just clicking both of them. You could go with this option only, just exclude this information, whatever the copyright information what we are seeing. So this setting is for the classic and this setting is for the lightning experience. Okay, so just enable this and save it. Now let's do the same thing. So what we have done, we let's go to the report. So this is for the report like we have created. Now, I also have downloaded one copy. This is the copy what we have downloaded it, right? Let me once again download one more copy of this. So they export the details and let's export this once again. Now let me open this report. Yes. So this is the second copy, I don't make any changes over here. See, this is the report. And just if you go at the bottom of the report, you don't see any of the copyright information. Last is what sample account for the entitlement. See, here also the sample account for the entitlements, but below this we could see we could see that there are certain copyright informations. After enabling that setting, we could now see that this whole copyright information has been removed from this report. So this was I was telling in the last lecture कि देखो एक setting है Salesforce में एक setting है, with that setting you could remove this whole copyright informations also. तो ये एक ऐसा पॉइंट है, आई कुड से कि आई एम एग्जैक्टली नॉट श्योर कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, बट हाँ हो सकता है कि आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो इसको ना थोड़ा सा हम याद रखेंगे, वी विल नॉट फॉरगेट दिस, क्योंकि रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड में वैसे भी पढ़ने के लिए कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती है। फर्स्ट लाइक हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आर देयर, तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ रिपोर्ट, टैबुलर, समरी, जॉइंट एंड मैट्रिक्स, राइट? On which report you could create the dashboard components, chat component. So there are only 2 kinds of reports on which we could do this in the summary as well as in the matrix report. So ऐसा फिर if you constructed a report, so how could you schedule the report? How could you run the report? How could you download the report? Now, when you download any report, it comes up with the copyright information. So how to exclude that copyright information? तो वो भी setting क्या थी वो आपको दिखाया. So technically ना रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड में ऐसा बहुत ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, एट द सेम टाइम बहुत एसेंशियल टॉपिक भी है। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग एंड लेट्स गो विद द next use case. And the next use case is like we need to configure the tabular report on the account object, and we just wanted to represent only those customers, only those account records whose rating is hot. ठीक है, whose rating is hot. तो आपको याद होगा ऐसा कुछ सिमिलर मैंने अकाउंट में काफी पहले बनवाया था आप लोगों से। एनहांस लिस्ट व्यू में यू सी वी हैव कंस्ट्रक्टेड दिस ऑल हॉट रेटिंग कस्टमर्स। नाउ इफ आई क्लिक दिस ऑप्शन ऑल अकाउंट्स, तो आई कुड नाउ सी that there are altogether 20 account records. These all are the accounts records. तो यहाँ पे कैसा है कि अभी तो हमको सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रेटिंग के हिसाब से मैं देखूं तो वो सारे दिख रहे हैं जिनका रेटिंग हॉट है, जिसका रेटिंग ब्लैंक है, वार्म है, कोल्ड है, विद एवरी ऑप्शन आई कुड सी एवरीथिंग। Now we have constructed one of this enhanced list view में एक ऑप्शन हमने ऐड किया था हॉट रेटिंग कस्टमर। यहाँ पर हमने फॉर्मूला फील्ड्स वगैरह अप्लाई की थी, एंड देन वी हैव मिनिमाइज्ड दिस सर्च टू ओनली दोज कस्टमर्स हुज रेटिंग इज व्हाट हॉट। तो यहाँ पे देखो आप, अगर मैं ये ऑप्शन के साथ जाता हूँ तो आई कुड ओनली सी दोज अकाउंट रिकॉर्ड हुज रेटिंग इज प्रिसाइसली हॉट। ठीक है, तो ऐसे कितने रिकॉर्ड्स है? बाय द वे वी आर हैविंग 11 रिकॉर्ड्स आउट ऑफ 20 वी हैव 11 रिकॉर्ड्स। नाउ समथिंग सेम हियर आई वांटेड टू शो यू कि अभी मैं एक रिपोर्ट बनाता हूँ। इनिशियली आई विल कंस्ट्रक्ट अ रिपोर्ट, बट व्हाट आई वांट, आई वांटेड टू सी ओनली दोस अकाउंट रिकॉर्ड ऑन द रिपोर्ट whose rating is what hot। तो ये आप कैसे अचीव करते हैं ना, हाउ विल यू अप्लाई दिस फिल्टर एंड ऑल दैट। फिल्टर से कितने टाइप होते हैं, तो वन बाय वन यहाँ पे ये 3 एग्जांपल्स में 3 अलग अलग टाइप्स आप सीखने वाले हो। चलिए, सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ न्यू रिपोर्ट on which object I wanted this to be created on the accounts. ठीक है, so let me first of all expand this and select the account. Now once you selected the object on which on which object you wanted to create the report, उसके बाद में just click on this create button. So this is my format, and I just don't want account owner, account name चाहिए मुझे, type
भी चाहिए, रेटिंग तो चाहिए ही चाहिए, लास्ट एक्टिविटी नहीं चाहिए, लास्ट मॉडिफाइड बिलिंग स्टेट नहीं चाहिए, रादर आई वांट रेटिंग ऑलरेडी इज देयर. Industry, I let me bring up the industry and let me select few more columns from here. Like I need to see the ownership also. Then I wanted to see phone. Okay, phone is not here. Phone I wanted to see. I even wanted to see the active status. Now let me minimize this report. तो ये कुछ कॉलम्स हैं जो मैंने डिसाइड किया है कि माय रिपोर्ट विल कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज कॉलम्स, नेम, टाइप, रेटिंग, इंडस्ट्री. नाउ यू सिंपली नो दिस. अभी ये काफी कॉमन हो गया हमारे लिए समझना इस चीज को कि वी कुड ईदर ब्रिंग सम मोर columns to here, like if I wanted to bring the customer priority, so I could bring it, or I could remove this also, if just drag and drop, if you don't want that column to be present on the report. So once you have done with this whole selection कि भैया हमारी रिपोर्ट में कौन कौन से कॉलम्स होंगे, so once you have done with this selection, अभी आप फिल्टर सेक्शन पे चलो. Presently I could see only 6 record. Why? Because जैसा यहाँ दिखा है उसके हिसाब से काम कर रहा है. So from here let me select all accounts of all time accounts. Now it's showing me all 20 records, right? If I run this report, I could see that this is the complete records from the account object. So this is what 20 records. But here presently, all type of account records we could see, like the rating, whose rating is hot, warm, cold, or even those account record who doesn't have any sort of rating, something like that. तो चलिए अब इसको वापस चलते हैं और कस्टमाइज करते हैं. Now what we want here, we wanted to see on this report, we wanted to see only those account record whose rating is hot. ठीक है, तो इसके लिए हमें फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे. सी फिल्टर सेक्शन पे चलते हैं. दिस इज व्हाट द फिल्टर इज हियर. दिस इज द फिल्टर. जस्ट a second. This is your filter. Now see, filters, there are 3 types. filters के 3 टाइप होते हैं. सबसे पहला होता है फील्ड फिल्टर, दूसरा होता है क्रॉस फिल्टर, एंड तीसरा होता है रोल लिमिट फिल्टर. सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन. This is also one of the interview question. Okay, how many different types of filters that you could apply on the tabular report, or rather in general, if I have a report, how many different types of filters I could apply on any of the report. So this is also one of the interview question. This is also one of the interview question. So now we could see that there are 3 different types of report. There are 3 different types of filters: field filter, cross filter, and row limit filter. So this is your batch. Let me paste it out here. So there are 3 different types of filter: field filter, cross filter, row limit filter. So one by one मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि what is the use of field filter, what is the use of cross filter, and then what is the use of row limit filter. ठीक है, one by one. अभी इस वक्त जो हमारी नीड है, इस वक्त जो हमारी नेसेसिटी है कि what we wanted to construct such kind of report जहां पे हमें सिर्फ वही अकाउंट रिकॉर्ड्स नजर आए जिसकी की रेटिंग क्या है, हॉट, जिसका रेटिंग है हॉट. तो इसके लिए आपको जो फिल्टर की जरूरत है उसका नाम है फील्ड फिल्टर. ठीक है, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस फील्ड फिल्टर. एक और चीज बताता हूँ. अभी आप देखो जैसे यहाँ पे फील्ड फिल्टर ऐड हो गया है, अकाउंट ओनर इक्वल्स टू समथिंग. मैं कैंसिल करता हूँ इसको. फील्ड फिल्टर अप्लाई, सिर्फ फील्ड फिल्टर की बात कर रहा हूँ. 3 तरह के फिल्टर है, फील्ड, क्रॉस एंड रो लिमिट. ठीक है, फील्ड फिल्टर अप्लाई करने के 2 तरीके हैं. देखिए, एक तो ये है कि आप इस ड्रॉप डाउन पे जाएं, आप इस पिक लिस्ट में जाएं और यहाँ से आप फील्ड फिल्टर सिलेक्ट करें. एक तो ये तरीका है. ठीक है, कैंसिल करता हूँ. दूसरा एक डायरेक्ट तरीका है, जो ऐड का बटन दिखा है ना जस्ट इसके बाजू में, अगर आप ये ऐड का बटन दबाते हो तब भी फील्ड फिल्टर आता है. तो सिर्फ फील्ड फिल्टर के लिए जस्ट फॉर द फील्ड फिल्टर देयर इज दिस एक्चुअली 2 different provisions. You could add it directly by pressing this button, add. Either the second thing, you could go with this, like ऐसा. तो फील्ड फिल्टर अप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं. ठीक है, ये सब चीजें क्या है, दिस इज होल अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. लेकिन सुनो, अगर मुझे क्रॉस फिल्टर अप्लाई करना है या मुझे रो लिमिट फिल्टर अप्लाई करना है, सो इन दैट केस देयर इज ओनली वन वे, कि आपको ये ड्रॉप डाउन खोलना पड़ेगा, आपको ये पिकलिस्ट मेन्यू खोलना पड़ेगा, एंड फ्रॉम हियर यू कुड सिलेक्ट क्रॉस और रो लिमिट. दिस इज द ओनली ऑप्शन. अगर आपको क्रॉस फिल्टर चाहिए तो आपको ये इस तरह से ड्रॉप डाउन खोलना. अगर आपको रो लिमिट फिल्टर अप्लाई करना है तब भी आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा. But our field filter के लिए at least we have this provision कि just by clicking this add button, you could see the field filters over. You could apply the field filter. तो ये एक चीज है, इसका फायदा उठाइए. So what I want, I don't want this to be on the owner, rather rating equals to hot.
तो मैं रेटिंग सिलेक्ट करता हूँ, या सारी मुझे अकाउंट की, देखिए आप अकाउंट में जितनी भी चीजें वो नजर आ रही है। सो रेटिंग इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू व्हाटएवर, ऐसा ही हमने वहां फॉर्मूला डिजाइन किया था। सो आई जस्ट वांटेड टू सी दोस अकाउंट रिकॉर्ड whose rating is what, hot. So out of this whole 20 records, out of this whole 20 records, I wanted to apply a filter. Out of this whole 20 records, I just wanted to see only those account record whose rating is what, rating equals to hot. Now, once you have, constructed with this formula, once you have constructed the formula, just press this OK button. Only after pressing this, this is going to be applied. This validation, कि ये rating वाली hot, this validation will only apply when you press this button. So let me do that. देखिए अब ये यहाँ पे apply हो चुका है, right? And let me now run this report and see what we could see. Now we have only 11 records, right? It matches with this selection. 11 records. देख लीजिए आप. You have only 11 records, and the same thing over here. तो ये है, this is the way to filter out the data according to your requirement based on certain values, based on the certain values, certain fields. You could see what you wanted to be present on the report. और बाकी चीजों को आप हटा सकते हो वहां से. So this is the way to apply the field filters. Now first of all let me save this. उसके बाद अगली रिपोर्ट पे चलता हूँ. So it's tabular report use case number 2. ठीक है. And then this is we wanted this to be inside Skyline. Save this. Okay, so now we have use case number 1 and use case number 2. Let's now go with use case number 3. So let's construct a tabular report once again on the account object to represent all account records who are associated with cases. Who are associated with cases. What does it mean? So let me, first let's go to the account object and then all accounts. Now see, there are altogether 20 different accounts. There are altogether 20 different accounts. Out of these 20 accounts, some of them are having related contacts, some of them are not having. ठीक है, कैसे पता चलेगा? आप कॉन्टैक्ट से भी देख सकते हो, कॉन्टैक्ट से डायरेक्टली दिख जाएगा. सो लेट मी क्लिक दिस ऑप्शन ऑल कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पे दिस इज व्हाट, दीज आर द कॉन्टैक्ट्स, Akin, Bar, Timbar, John, and then Lauren, Mark, these all are contact. For these contact, these are the accounts. Then there are few of the contacts like this. For this contact, there's no such account. There's no such account. This is also one of the way to get this. तो कैसा है कि let me open this. For example, I open this account test record, Athena, Burlington, randomly I'm clicking few of the accounts record. Now let's one by one see this. तो ये एक हमारा account record है जिसका नाम है account test record number 1. So if I scroll it down, मैं इसको देखता हूँ, अगर नीचे scroll करते तो I could see that for this account test record, there is one contact, related contact. ठीक है, चलो इसके लिए एक related contact है. Let's close that. Account test record number 2 के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई related contact नहीं है, right? चलो इसको मैं क्लोज करता हूँ. फिर देन लेट्स एथीना होम प्रोडक्ट्स के लिए आई कुड सी दैट देयर इज अ रिलेटेड कॉन्टैक्ट. ठीक है, बर्लिंगटन टेक्सटाइल के लिए अगेन देयर इज अ रिलेटेड कॉन्टैक्ट. डिक्सन के लिए यस देयर इज अ रिलेटेड. सो देयर आर फ्यू ऑफ द कॉन्टैक्ट्स. एज के लिए भी है, एक नहीं दो है. So there are few of the accounts for which there is a related contact, and then there are few more accounts for which there is no related contact, probably, right? Sample or probably test account, United Oil and Gas. Let me go with this. तो अगर मैं बारी बारी चेक करूं, देखो कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स मिलते हैं हमको जो अकाउंट में है और जिनके लिए रिलेटेड कॉन्टैक्ट नहीं भी है, और कुछ ऐसे भी हैं जिसके साथ रिलेटेड कॉन्टैक्ट है, अब इसके लिए भी नहीं है. यूनाइटेड ऑयल गैस के लिए है, एक नहीं दो है. सो यस, तो अभी ये इसके लिए तो काफी सारे 4 हैं. सो व्हाट वी वांट, अभी एक रिपोर्ट हम बनाना है, अभी एक रिपोर्ट हमको बनाना है. एंड इन द रिपोर्ट वी जस्ट वांटेड टू रिप्रेजेंट ओनली दोज अकाउंट रिकॉर्ड जिसका की कोई रिलेटेड कॉन्टैक्ट, रिलेटेड केसेस है. अच्छा, रिलेटेड केसेस है, सॉरी. सो चलो बहरहाल जो भी है. सो मैं देखा नहीं, मैंने कॉन्टैक्ट पढ़ा उसको. तो हमको ये एसोसिएशन देखना है, मतलब हमको यहाँ पे सिर्फ वही अकाउंट रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जिसके साथ रिलेटेड कॉन्टैक्ट नहीं है, रिलेटेड केसेस है. रिलेटेड केसेस है, तो हो सकता है कई सारे अकाउंट हैं जिनके साथ रिलेटेड केसेस है, और कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड्स है जिनके साथ कोई रिलेटेड केसेस नहीं है. तो इसके लिए नहीं है. इफ आई गो विद दिस, तो इसके लिए भी नहीं है, उसके लिए पता नहीं मुझे है या नहीं, तो इसके लिए भी नहीं है. तो देखिए आप, केसेस ब्लैंक है. तो हमें ऐसे अकाउंट रिकॉर्ड ही डिस्प्ले करना है रिपोर्ट पे.
जैसे इस रिपोर्ट को मैं नाम दे सकता हूँ अकाउंट विथ केस, इस तरह से कुछ नाम दे सकता हूँ कि अकाउंट विथ केसेस, इस तरह का मैं नाम दे सकता हूँ रिपोर्ट को। तो यहाँ पे हमें वो रिपोर्ट्स बनानी है या दिखानी है जिसमें जिन अकाउंट रिकॉर्ड के साथ कोई ना कोई केस एसोसिएटेड है। तो अभी कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। सो वंस अगेन फ्रॉम दिस लिस्ट जस्ट सिलेक्ट द अकाउंट एंड press this create button. First of all account, all time account. Owner I don't want, type रहने देता हूँ, rating, last activity I don't want, last modified I don't want, billing state in fact I don't want. Let me add few more columns. Annual revenue ला लेते हैं, type is already there, rating is already there. Let's bring the industry and few more things like phone and fax and website and the active status. ठीक है, इतनी सारी चीजें. Now if I run this report, it could see me all 20 records, right? सारे. अब मुझे क्या करना है कि ये ऐसे नहीं दिखाने. I just customize करता हूँ. I just wanted to see only those account record. ये सारे records में से सिर्फ मुझे वही account record display करना है, those who are associated with some cases. तो इसके लिए कौन सा फिल्टर अप्लाई करेंगे? तो इसके लिए आता है क्रॉस फिल्टर. ठीक है, क्रॉस मतलब देखिए अकाउंट विथ और विदाउट अपॉर्चुनिटी. एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे रहा है. तो विथ अपॉर्चुनिटीज जैसे हमारा विथ केसेस विदाउट केसेस, ऐसा जहां पे आप रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हो कि ये एक रिकॉर्ड है, इसके साथ जो भी रिलेटेड है, रिलेटेड कॉन्टैक्ट है, रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, रिलेटेड केसेस है, या फिर रिलेटेड हायरिंग मैनेजर है, रिलेटेड पोजिशन है, तो वो आप दिखाओ. तो उसके लिए आपको ना क्रॉस फिल्टर, आप जैसे आप क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन पढ़ा है ना आपने, जो आपने वर्क फ्लोज में पढ़ा है, आपने प्रोसेस बिल्डर में भी पढ़ा है. तो ये क्रॉस का मतलब ही होता है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का रिलेशन. वो था क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट, जहां फील्ड अपडेट कर रहे थे. यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग, वी आर आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप्स. तो इसके लिए आपको दूसरा टाइप का जो फिल्टर है, सेकंड फिल्टर क्रॉस फिल्टर, वो अप्लाई करना है. तो क्रॉस फिल्टर में अभी अकाउंट ही चाहिए या कुछ और चाहिए? तो फिलहाल क्योंकि ये रिपोर्ट में सारी फील्ड्स अकाउंट की है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, वो है अकाउंट. अकाउंट विथ और विदाउट दो ऑप्शन रहेंगे. जैसे हो सकता है ना कि अकाउंट विदाउट कॉन्टैक्ट ये दिखाओ, या अकाउंट विथ कॉन्टैक्ट. अकाउंट विथ केस ये हमारी अभी यूज केस है. हो सकता है अकाउंट विदाउट यूज केस बोले, तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन है आपका. ठीक है, अकाउंट विथ व्हाट, तो अब यहाँ पे पूरी लिस्ट. अकाउंट विथ एक्टिविटीज, ये भी ऑब्जेक्ट्स है. अकाउंट क्लीन इन्फो, अकाउंट विथ या विदाउट एक्सेस, असेट्स, केसेस जो मुझे सिलेक्ट करना है. अकाउंट विथ कॉन्टैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, एंटाइटलमेंट, जिससे अकाउंट का रिलेशनशिप जिस ऑब्जेक्ट के साथ है. अगर आप पोजीशन के साथ रिलेट कर दोगे अभी उसको, तो यहाँ पोजीशन का नाम भी आ जाएगा. अगर आप उसको कोई और ऑब्जेक्ट है, आपका लोन है, बैंक है, उसके साथ रिलेट करते तो वो भी नाम आ जाएगा. तो ये सारे वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे यहाँ पे चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स के नाम है जो अकाउंट के साथ रिलेटेड है या तो मास्टर डिटेल में रिलेटेड है या तो लुकअप में. कुल मिला के बात ये बनती है कि यहाँ पे सारे वो ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं जो अकाउंट से साथ जिनका रिलेशनशिप है. ठीक है, वो सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं. अब रिलेशनशिप लुकअप है तो भी डिस्प्ले होंगे यहाँ पे, रिलेशनशिप मास्टर डिटेल है तो भी डिस्प्ले होंगे. ठीक है, सो हमें क्या चाहिए, वी वांटेड ओनली दोज अकाउंट हु आर हैविंग द केसेस एसोसिएटेड विद दिस. तो मैंने ये फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट किया, अकाउंट विथ केसेस. अब अगर आप चाहते हो कि केसेस में भी पर्टिकुलरली कोई फिल्टर अप्लाई करना चाहते हो कि केसेस में भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो आप यहां से जा सकते हो केस. ठीक है, केस नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, स्टार्ट विथ. तो ये क्या हुआ, ये इसके आगे और मतलब आप और स्पेशलाइज्ड उसको कर रहे हो, आप उसमें और वैलिडेशन अप्लाई कर रहे हो, है ना. तो फिलहाल तो ऐसी कोई रिक्वायर्ड है नहीं. आई जस्ट वांटेड टू हैव ओनली एक प्लेन सा फॉर्मूला है कि आई जस्ट वांटेड टू सी दोज अकाउंट व्हिच आर हैविंग सम केसेस. अब उसमें भी अगर एक स्पेशलाइज फॉर्मूला कि केसेस विद द आईडी, ये आईडी, या फिर केस विद दिस विद दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के साथ में जितने भी केसेस लगी हैं वो सारे. तो ये और इतना जितना आपको गहराई में जाना है, आप ये ना इतने ज्यादा फिल्टर अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, फिलहाल मैं इसको सिंपल रख रहा हूँ बिकॉज वही नीड है अभी हमारी. सो आई एम कंस्ट्रक्टेड दिस फॉर्मूला, आई कंस्ट्रक्टेड दिस फॉर्मूला अकाउंट्स विथ केसेस. ओके, now as soon as I press this OK button, the validation is going to be applied on all this whole record. ठीक है, यहाँ पे validation लगेगा. ओके, तो देखो अब यहाँ पे फिर से ये रीइवैल्यूएट हो गया. एंड लेट मी नाउ रन दिस रिपोर्ट. तो अभी जो है यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये कुछ चीज अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, यहाँ पे लेट मी शो यू दैट. तो यहाँ पे ये जो है फिल्टर्ड बाय व्हाट, फिल्टर्ड बाय अकाउंट्स विद द केसेस. ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया गया, यहाँ कौन सा फिल्टर अप्लाई किया गया. ये जो सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ क्रॉस फिल्टर. ये यहाँ पे क्रॉस फिल्टर अप्लाई किया गया, दैट्स व्हाई दिस इज द रिकॉर्ड. तो ऐसे टोटल कितने रिकॉर्ड है, 9 रिकॉर्ड्स हैं.
देयर आर 9 रिकॉर्ड्स। तो ये होता है नीड ऑफ अप्लाइंग क्रॉस फिल्टर एंड देन हाउ टू अप्लाई द क्रॉस फिल्टर। तो ये है वो तरीका। चलिए इसको सेव करते हैं। मैं इसको सेव कर सकता हूँ अकाउंट विद रिपोर्ट्स के नाम, विद द केसेस के नाम से, बट रादर मैं इसको जनरलाइज रख रहा हूँ यूज केसेस के हिसाब से। एंड लेट्स स्टोर दिस इनसाइड स्काईलाइन फोल्डर, सेव इट। चलो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका रो लिमिट फिल्टर। क्या होता है? चलो, तो रो लिमिट फिल्टर में यहाँ पे मैं दो चीजें करता हूँ कि एक और रिपोर्ट बनाता हूँ अकाउंट के ऊपर। पहली चीज की मुझे सिर्फ वही अकाउंट्स रिकॉर्ड दिखाने हैं जिसकी इंडस्ट्री है बैंकिंग, और मुझे ऐसे सिर्फ 3 रिकॉर्ड दिखाने हैं। ठीक है, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे नहीं दिखाने, मुझे सिर्फ टॉप 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिखाने हैं। तो पहले तो मैं वो अकाउंट सिलेक्ट करता हूँ जिसकी इंडस्ट्री है बैंकिंग, और ऐसे कितने मिलते हैं उसमें से सिर्फ 3 मुझे दिखाने हैं। चलो, सो लेट मी जस्ट क्लिक दिस रिपोर्ट वंस अगेन। एक नया रिपोर्ट बनाते हैं ऑन द अकाउंट ऑब्जेक्ट, क्रिएट अ न्यू रिपोर्ट, ऑल अकाउंट्स ऑफ ऑल टाइम अकाउंट्स, ओनर नहीं चाहिए, एंड रेटिंग लास्ट एक्टिविटी लास्ट मॉडिफाइड बिलिंग स्टेट नहीं चाहिए। इंडस्ट्री ऐड कर लेते हैं, ओनरशिप ऐड कर लेते हैं, अकाउंट आईडी इफ यू वांटेड यू कुड ऐड इट इन, जस्ट ऐड इट इन द बिगिनिंग। अकाउंट आईडी भी ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे, फोन एंड द फैक्स एंड द वेबसाइट एंड एक्टिव स्टेटस यार। सो दिस इज व्हाट आई हैव एडेड। मैं रन करता हूँ रिपोर्ट को, सी हाउ डज इट लुक्स लाइक। तो ये हमने रिपोर्ट बनाई है। अब इसमें से सबसे पहले हमें यहाँ दिख रहा है कि सारे अलग अलग तरह के लोग हैं। सो मैं एक काम करता हूँ, कुछ रिकॉर्ड्स, जैसे ये तो बैंकिंग है ऑलरेडी, ये केमिकल्स है, ये इंश्योरेंस है, ये इनमें से मैं कुछ रिकॉर्ड्स को कुछ रिकॉर्ड्स को इंडस्ट्री चेंज कर देता हूँ। अकाउंट टेस्ट रिकॉर्ड नंबर 3 की इंडस्ट्री है इस वक्त केमिकल्स। लेट मी चेंज इट टू बैंकिंग। बैंकिंग चेंज करके सेव कर देता हूँ। चलो ये हो गया, बैंकिंग हो गया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी इंडस्ट्री है इंश्योरेंस, इसको भी मैं चेंज करता हूँ बैंकिंग से। लेट मी सेव दिस रिकॉर्ड, इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद लेट मी इसको भी केमिकल्स से इसको मैं चेंज करता हूँ बैंकिंग पे। लेट मी नाउ सेव दिस। अकाउंट इंडस्ट्री इज लाइक यहाँ कुछ भी नहीं था, सो लेट मी सिलेक्ट द बैंकिंग फ्रॉम हियर। लेट मी सेव दिस आल्सो and one final record like banking, it's already banking, okay fine। तो अभी देखो यहाँ पे ना पुराना रिकॉर्ड दिख रहा है आपको, लाइक यू कुड सी दैट यहाँ पे अकाउंट टेस्ट रिकॉर्ड नंबर 2 का इंश्योरेंस है, 3 का। सो हाउ टू सी दैट लेटेस्ट रिकॉर्ड, दैट्स व्हाई मैंने लास्ट टाइम बताया था यू नीड टू प्रेस दिस रन रिपोर्ट बटन। सो वंस अगेन अब जब आप रन रिपोर्ट बटन करते हो तो ये इट विल गोइंग टू फेच द एक्चुअल अब रियल टाइम डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, द लेटेस्ट डेटा, the values of this fields, the latest value of these fields are going to be fetched from database, right? अब आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे रिकॉर्ड्स आ गए हैं जिनकी इंडस्ट्री है बैंकिंग। नाउ लेट मी अप्लाई दिस फिल्टर। अब मैं फिल्टर अप्लाई करता हूँ। तो प्रेजेंटली तो मेरे को सारे रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं, बट आई वांटेड टू सी ओनली दोज रिकॉर्ड। तो एक फील्ड फिल्टर अप्लाई करना है। सबसे पहले फील्ड फिल्टर अप्लाई करता हूँ जिसमें इंडस्ट्री इक्वल्स टू बैंकिंग रहे। सो इंडस्ट्री मैंने सिलेक्ट किया, इंडस्ट्री इक्वल्स टू व्हाट, I wanted to see only those record whose industry is banking. So first of all, let me apply this. अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो ऑल टुगेदर देयर आर 6 रिकॉर्ड, 6 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं, बट आई वांटेड टू सी ओनली टॉप 3 रिकॉर्ड फ्रॉम देम। तो अब मैं यहाँ पे एक और फिल्टर लगाऊंगा, ठीक है, और वो फिल्टर रहेगा आपका रो लिमिट फिल्टर। ये कब लगता है पता है क्या? जब बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स है ना, उतने रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए फिर आपको उतना नहीं दिखाना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप फिर रो लिमिट फिल्टर अप्लाई करते हैं कि आपको कितने दिखाने हैं एक्चुअली। ठीक है, तो 3 फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स सॉर्टेड बाय अकाउंट आईडी। अकाउंट आईडी से सॉर्ट करना है या फिर नेम से, तो नेम से करूंगा तो ए से लेके जेड तक होंगे, आईडी से करूंगा तो क्रिएशन के हिसाब से होगा, फिर असेंडिंग के हिसाब से या डिसेंडिंग के हिसाब से, या फिर और कोई दूसरा क्राइटेरिया आपका रेटिंग के हिसाब से, रेटिंग इक्वल्स टू हॉट हो, है ना, ऐसा कुछ तो भी, तो या फिर रेटिंग है या नहीं है उस हिसाब से, तो जहां से भी आपको करना है। तो मैं अकाउंट इक्वल्स टू नेम, नेम के हिसाब से इसको सॉर्ट आउट करता हूँ एंड ओके। तो अब देखो यहाँ पे इफ आई नाउ रन दिस रिपोर्ट यू विल सी ओनली 3 रिकॉर्ड्स, फर्स्ट 3 रिकॉर्ड ए के हिसाब से, ए बी सी डी के हिसाब से। अगर आप इसको डिसेंडिंग करते थे, कस्टमाइज दिस, वैल्यूज यही रहने दो, वैल्यूज यही रहने दो, इसको डिसेंडिंग कर दो एंड लेट्स सी दिस। अब रिपोर्ट रन करो तो अब देखो अब यहाँ से क्या हो रही है, नीचे से ऊपर से आ रहा है,
like this. So this is the way to apply your row limit filter. Tabular use case number 4. ठीक है? And let's store this inside the skyline, save it. So this completes your tabular report. ये होता है आपका tabular report. अब एक report और ले लेता हूँ because हमारे पास समय है आज. तो go with this and have a practice on this whole चारों report से practice करिए. Let me now start the next type of report and that is summary report. ठीक है? तो probably दो चीजें आज cover कर लेंगे हम यहाँ पे. Summary report क्या होता है? Summary is used to, जैसा कि नाम है इसका है ना, समरी इज यूज्ड टू समराइज द रिपोर्ट बेस्ड ऑन सर्टेन कंटेंट्स. मतलब कुछ कंटेंट के आधार पे, कुछ रिकॉर्ड्स के आधार पे अगर हमको रिपोर्ट्स को समराइज करना है, देन वी विल गो विद दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट. अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है कि समरी रिपोर्ट पे आप चार्ट कंपोनेंट डिस्प्ले कर सकते हो. ठीक है? तो सबसे पहले आप समरी रिपोर्ट बनाना सीखो, उसके बाद में फिर चैट कंपोनेंट कैसे लगाते हैं तो वो मैं आपको सिखाता हूँ. ओके, सो लेट्स कंस्ट्रक्ट अ समरी रिपोर्ट to represent all the accounts record by grouping. उनको ग्रुप करेंगे हम, समराइज करेंगे based on what rating value. ठीक है? आइए पहले देखो आप, उसके बाद में रिपोर्ट द डेटा इन द चैट फॉर्मेट, वो भी कर लेंगे. सो लेट्स कंस्ट्रक्ट अ न्यू रिपोर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल एक नया रिपोर्ट बनाते हैं. किस पे? अकाउंट पे. अकाउंट सिलेक्ट किया, क्रिएट किया, एंड यहाँ से सिलेक्ट करिए आप ऑल अकाउंट्स और यहाँ से सिलेक्ट करिए ऑल टाइम्स अकाउंट. इसके बाद आप ये रिपोर्ट में आपको जो जो फील्ड चाहिए वो रखिए, जो फील्ड नहीं चाहिए उसको यहाँ से निकाल दीजिए. ठीक है? सो आई वांटेड टू हैव एनुअल रेवेन्यू चाहिए मुझे. टाइप इज ऑलरेडी देयर, रेटिंग इज ऑलरेडी देयर, इंडस्ट्री ऑल्सो आई वांटेड टू सी, ओनरशिप आई वांटेड टू सी, then I wanted to see phone, fax, website, active status, customer priority, and this whole thing. ठीक है? Let me run this report and see how does it looks like. तो देखिए आप, ये है आपकी रिपोर्ट जो अभी इस तरह से नजर आ रही है. अब आप यहाँ पे देखें, अगर अगर आप यहाँ पे देखें रेटिंग के हिसाब से देखते हैं अगर आप, ठीक है, कस्टमर प्रायोरिटी हटा लेता हूँ मैं, कंफ्यूजन होगा, कोई एक चीज रखता हूँ. चलिए, once again let me run this report. तो रेटिंग के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, so I could see that there are few of the records, account record whose ratings are hot. ठीक है? Then I could see that there are few of the account record whose rating is warm. कुछ ऐसे हैं जिनकी rating warm है. I could even see that there are few of the accounts record whose rating is cold. Whose rating is cold, right? Even there are few of the records that doesn't have any of the rating to be, that doesn't have any of the rating. उसके ऊपर कोई rating है नहीं. ऐसे कुछ records हैं. So अभी ये रिपोर्ट मुझे कैसे देख रही है? This is just scattered. From A to Z ये scattered है. अभी इसमें अगर मैं इसको देखूं तो इसकी रेटिंग ये है. As soon as I come to this test account, तो यहाँ पे इसकी रेटिंग बदल जाती है. So if I wanted to group this whole report, रिकॉर्ड इतना नहीं, BC रिकॉर्ड रहा है, but it should be like, अगर मैं इसमें अब internal partitions चाहता हूँ, I wanted to see this report in a form जहां पे मुझे एक ऐसा ग्रुप रहे जैसे हॉट रेटिंग कस्टमर्स का, जिसमें सारे हॉट रेटिंग कस्टमर्स दिख जाए. उसके बाद एक ग्रुप रहे वार्म रेटिंग कस्टमर्स का, उसमें सारे वही अकाउंट रिकॉर्ड दिखे जिनकी रेटिंग है वार्म. फिर आई वांटेड टू हैव एक ग्रुप जिसमें कि ऐसे अकाउंट रिकॉर्ड दिखे जिसका रेटिंग है कोल्ड, तो फिर ऐसे दिखे जिनका रेटिंग है ही नहीं. तो फिर कैसे ना हमें समझना आसान हो जाएगा. इस रिपोर्ट को देखने के बाद हमें क्लियर कट ये पता चलेगा कि आउट ऑफ दिस होल 20 रिकॉर्ड्स, अभी 20 है, 200 है, 2000 है, उसमें से कितने ऐसे रिकॉर्ड्स है जिसका रेटिंग हॉट है, जिसका रेटिंग वार्म है, जिसका रेटिंग कोल्ड है, दोज इवन डोंट हैव एनी अप्लाइड रेटिंग ऑन दैट, राइट. तो यहाँ पे मैं इस पूरी रिपोर्ट को ग्रुप करना चाहता हूँ. ठीक है, इस पूरी रिपोर्ट को ग्रुप करना चाहता हूँ. तो अब हम क्या करें इसके लिए? तो उसके लिए हमें इस रिपोर्ट के टाइप, फिलहाल इस रिपोर्ट का टाइप है टैबुलर. और एक क्वेश्चन और समझ लो अभी आप, फर्स्ट टाइम जब भी कोई रिपोर्ट बनती है, जैसे अभी मैंने ये रिपोर्ट बनाया, द इनिशियल फॉर्मेट, द डिफॉल्ट फॉर्मेट ऑफ एनी रिपोर्ट इज ऑलवेज टैबुलर. पहली बार जब भी रिपोर्ट बनती है वो हमेशा टैबुलर ही बनती है. ठीक है? टैबुलर बनने के बाद फिर आप डिसाइड करते हो कि आपको करना क्या है. यू कुड कन्वर्ट दिस इनटू समरी, इनटू मैट्रिक्स, इनटू जॉइंट. लेकिन डिफॉल्ट फॉर्मेट किसी भी रिपोर्ट का अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉर्मेट ऑफ एनी रिपोर्ट, इज एक्चुअली टैबुलर. ठीक है? तो ये देखो छोटी छोटी चीजें हैं, बट ऑब्जर्वेशंस, जैसे मैंने कहा कि ऑब्जर्वेशंस आर एसेंशियली इंपॉर्टेंट.
वैसे तो मैं ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें हो रही है मैं कवर कर रहा हूँ। अगर मुझसे कुछ छूट जाता है बाय द वे, तो यू मस्ट बी एबल टू ऑब्जर्व दोस थिंग्स, है ना। तो यहाँ आप देखो, आप इतने सारे एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए। अभी आई वांटेड टू क्रिएट अ समरी रिपोर्ट, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता। फर्स्ट आई नीड टू क्रिएट व्हाट, आई नीड टू क्रिएट अ टैबुलर रिपोर्ट। मुझे जो रिपोर्ट बनानी है, दैट रिपोर्ट इज व्हाट, इट्स अ टैबुलर रिपोर्ट। तो ये हमेशा याद रखो कि इफ दे आस्क यू अबाउट अ डिफॉल्ट फॉर्मेट ऑफ एनी रिपोर्ट इज टैबुलर। अब बस ये रिपोर्ट बन के तैयार है, अब हम इसका काम करते हैं। लेट्स नाउ हैव दिस रिपोर्ट। अब इसको हम चेंज करते हैं आपकी टैबुलर से समरी पे, ठीक है। Now, as soon as I change this, as soon as I change this summary report पे, जैसी tabular था, it was initially a tabular report. Now, as soon as I change this format from tabular to summary, one thing if you observe, if you observe, यहाँ पे एक drop zone create हो गया। See, this is the drop zone. ये एक drop zone है जो आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे create हो गया, right? This is a drop zone which has been created. ये क्या बताता है? ये क्या बता रहा है आपको? This is actually asking you drop a field here to create the group. तो आप ये जो पूरा डेटा देख रहे हो ना, दिस होल डेटा व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ, ये पूरा 20 रिकॉर्ड जो आप देख रहे हो, इसको आप ग्रुप करना चाहते हो तो कैसे करना चाहते हो? बेस्ड ऑन व्हाट कॉलम्स? बेस्ड ऑन टाइप, बेस्ड ऑन रेटिंग, बेस्ड ऑन एनुअल रेवेन्यू, बेस्ड ऑन इंडस्ट्री ओनरशिप, ठीक है, बेस्ड ऑन कस्टमर प्रायोरिटी, जो आखिरी वाला कॉलम था भी मैंने हटाया। इफ यू वांटेड टू मेक सर्टेन ग्रुप्स ओवर हियर, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ ग्रुपिंग दिस? तो इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो यहाँ पे हमने वी वांटेड दिस टू बी ग्रुप बेस्ड ऑन रेटिंग। तो अभी आप देख रहे हो रेटिंग यहाँ पर एक कॉलम है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दिया। देयर आर टू वेज टू ऐड दिस कॉलम टू दिस ड्रॉप जोन। यहाँ से यहाँ लाना है मुझे। एक तो सीधा ऐसे, ये सबसे सिंपल, उठाया पटक दिया, उठाया पटक दिया, दिस इज वन वे। अनदर वे इज लाइक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक छोटा सा यहाँ पे क्विक लिस्ट है, उसमें एक नीचे में आप आते हो असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्ट में, है ना। रिमूव कॉलम, कॉलम हटाने का भी है। ग्रुप बाय दिस फील्ड ये भी है। तो ये दोनों में से जो आपको फिजिबल लगे, ग्रुप बाय दिस फील्ड करोगे तो भी यही होता है, राइट, ठीक है, तो भी यही होता है एक्चुअली, तो बेसिकली ऐसा है ये। और एल्स जो है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, रिमूव करते हैं अभी, तो अभी यहाँ से भी हट जाएगा, मेरे को फिर से ऐड करना पड़ेगा उसको। रेटिंग लास्ट में ऐड हो गया, इसको इधर लेके आता हूँ मैं कहीं पर। हाँ, तो एक तरीका तो ये है, देखो आप यहाँ से ऐसे ग्रुप बाय कर सकते हो। दूसरा है सबसे सिंपल तरीका, इसको उठाओ और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। चलो, अब आप जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, पहली बात तो रेटिंग कॉलम से हट जाता है। रेटिंग यहाँ कॉलम से हट जाता है, रेटिंग एक रो बन जाती है। इनिशियली इट वाज लाइक कॉलम, यहाँ से नजर आ रहा था आपको, दिस होल आर कॉलम, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉलम, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉलम, ये भी एक कॉलम, ये भी एक कॉलम है, दिस ऑल आर कॉलम्स। लाइक रेटिंग भी हुआ करता था, लेकिन अब रेटिंग क्या बन गया, रेटिंग बिकम्स अ रो। रेटिंग देख लो आप, तो ये होता है जब आप ड्रॉप जोन पे, अच्छा ड्रॉप जोन पे आपने एक एलिमेंट, एक एक फील्ड को पुटअप किया, तो यहाँ फिर से एक नया ड्रॉप जोन बन के तैयार हो गया। दैट मीन्स आप इसके अंदर भी आप पार्टीशन कर सकते हो, रेटिंग इक्वल्स टू दिस एंड अगेन यहाँ पे कोई और इंडस्ट्री इक्वल्स टू व्हाट, ऐसा। तो आप ये ड्रॉप जोन बनते जाएगा, ये आपके ऊपर है कि आप कितनी गहराई तक इसको फिल्टर आउट करना चाहते हो। चलो पहले ये सिंपल देखो कि रिपोर्ट दिख कैसे रही है, रन दिस रिपोर्ट। तो अभी डेटा उतना ही है, 20 रिकॉर्ड ही है, लेकिन क्या दिख रहा है मुझे, सबसे पहले दिख रहा है कि रेटिंग इक्वल्स टू ब्लैंक। ऐसे कितने रिकॉर्ड है, उसका काउंट, कितने रिकॉर्ड है, 3 रिकॉर्ड। रेटिंग इक्वल्स टू हॉट, ऐसे कितने रिकॉर्ड है, आउट ऑफ 20 वी हैव 11 रिकॉर्ड्स। देन रेटिंग इक्वल्स टू वार्म, ऐसे कितने रिकॉर्ड्स हैं, 4। और रेटिंग इक्वल्स टू कोल्ड, ऐसे हैं 2 रिकॉर्ड्स। तो ये है आपका फायदा व्हेन यू गो विद द समरी रिपोर्ट। तो समरी रिपोर्ट में क्या होता है कि हम आउट ऑफ दिस होल डेटा, अगर हमको कुछ स्पेशलाइज चाहिए, जैसे मान के चलो कि इसको मैं दूसरा तरीका, कि अगर मुझे ये देखना है कि इंडस्ट्री इक्वल्स टू बैंकिंग वाले कितने रिकॉर्ड है, तो मैं इसको चेंज करूंगा, अभी रेटिंग हटा दूंगा और मैं बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर से कि बैंकिंग वाले कितने हैं, फाइनेंस वाले कितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कितने, तो वो उस तरीके से नजर आएगा। कस्टमर प्रायोरिटी के हिसाब से लगाना चाहता हूँ, एसएलए एग्रीमेंट के हिसाब से, गोल्ड, सिल्वर और जो हमारा अलग प्लेटिनम, 3 तरह का है। तो गोल्ड वाले एसएलए वाले कितने अकाउंट है, प्लेटिनम एसएलए वाले कितने अकाउंट है, और उसके बाद आपके सिल्वर वाले कितने अकाउंट है, पैसा। तो ये होता है ग्रुप क्रिएट करना रिपोर्ट्स के अंदर, इसको बोलते हैं समरी क्रिएट करना, समराइज करना रिपोर्ट को। अब समरी रिपोर्ट पे एक फायदा और मिलता है, ठीक है, जैसे अभी आपने समरी रिपोर्ट बना लिया है, ठीक है, इस पे एक चीज और होती है, और वो होता है यू कुड क्रिएट चार्ट कंपोनेंट। क्या, चलो कस्टमाइज करता हूँ।
नो सी, यहाँ पर एक बटन आया ऐड चार्ट, ये इसके पहले नहीं था एक्चुअली, इसके पहले नहीं था ये। लेट मी शो यू दैट। अगर मैं इसको टैबुलर पे लेके जाता हूँ, ठीक है, तो पहली बात तो मुझे रेटिंग ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, रेटिंग हट गया और अदर रेटिंग ऑलरेडी है शायद कहीं, हाँ ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वो बटन नजर नहीं आ रहा है आपको, राइट। ऐड चैट मतलब टैबुलर रिपोर्ट पे चैट कंपोनेंट ऐड नहीं कर सकते, पहली बात तो ये है। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ वापस समरी, अभी जो कि इसके पहले वही कर रहा हूँ, समरी रेटिंग के हिसाब से इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर आया, देखो मेरा चैट कंपोनेंट का एक बटन तैयार हो गया, इसके पहले नहीं था ये। इफ यू सी दिस बटन वाज नॉट प्रेजेंट प्रीवियसली फॉर द टैबुलर रिपोर्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू ऐड द चैट कंपोनेंट। और चैट कंपोनेंट सबसे पहली बात कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। चैट कंपोनेंट क्या होता है, डैशबोर्ड क्या होता है, दिस इज वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय चैट कंपोनेंट एंड डैशबोर्ड कंपोनेंट? तो चलो इसका एक लाइन में आंसर समझो। डैशबोर्ड क्या है तो बाद में पता चलेगा। चैट कंपोनेंट पर्टिकुलरली उसको बोलते हैं जो रिपोर्ट पे लगाता है। और ऐसे कितने हैं ऐड चार्ट, ऐसे कितने हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज ये कौन सा टाइप है यार, दिस इज वर्टिकल बार चार्ट, दिस इज हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, हाँ हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, वर्टिकल बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, फेनल चार्ट, स्कैटर्ड चार्ट। सो इट्स लाइक कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंपोनेंट है यहाँ पे, ठीक है। इनमें से चैट कंपोनेंट, ध्यान से सुनो, ये हैं आपके 7 चैट कंपोनेंट्स, दीज आर 7 चैट कंपोनेंट्स। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, वर्टिकल बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, फेनल चार्ट, स्कैटर्ड चार्ट, ठीक है। ये इनके नाम है। आपने लिखा अच्छी बात है, नहीं लिखा तो खैर बाद में हो जाएगा। सो इनमें से कोई एक मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। चैट कंपोनेंट काय पे बनते हैं, फिर से चैट कंपोनेंट रिपोर्ट से बनते हैं, लेकिन सारी रिपोर्ट्स पे नहीं, टैबुलर पे नहीं बनता है, जॉइंट पे नहीं बनता है। किस पे बनता है, एक तो समरी पे बनता है, समरी पे दिख रहा है यहाँ पे, और आगे चल के जब आप मैट्रिक्स पे जाओगे ना तो उस पे भी बनेगा। टैबुलर पे नहीं बनता, जॉइंट पे नहीं बनता, किस में बनता है, समरी और मैट्रिक्स पे। चैट कंपोनेंट क्या होते हैं, तो चैट कंपोनेंट आर दीज कंपोनेंट, देयर आर 7 डिफरेंट चैट कंपोनेंट्स। देखो यहाँ पे आप अपना कर्सर लेके जाओ, इसका नाम आ जाता है हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, इसका नाम है वर्टिकल बार चार्ट, इसका नाम है लाइन चार्ट, इसका नाम है आपका पाई चार्ट, इसका नाम है आपका डोनट, दिस इज फेनल एंड दिस इज स्कैटर्ड। तो ये 7 है, लेकिन रिपोर्ट पे इसमें से कोई एक ही आप सिलेक्ट कर सकते हो, सारे नहीं कर सकते, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं सिलेक्ट करता हूँ डोनट चैट को, कि मुझे डोनट चैट लगानी है। तो यहाँ पे आप लाइक रिकॉर्ड काउंट के हिसाब से, रेटिंग जो भी है इसके हिसाब से बनेगा, रिकॉर्ड काउंट वर्सेस रेटिंग। फॉर्मेटिंग में आप कलर्स वगैरह यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, जो कलर्स आ रहे हैं तो आप डिफॉल्ट्स के साथ जा सकते हो इधर, यार यू कुड चेंज द कलर्स आल्सो। आप कुछ चीजें और, जैसे कि मैं अगर शो वैल्यूज करता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे वैल्यूज भी नजर आ रही हैं। या तो शो वैल्यूज करो या शो परसेंटेज करो। तो परसेंटेज में यह था कि आउट ऑफ टोटल कितने परसेंट है हॉट, कितने परसेंट है ऐसा, या फिर आप वैल्यू शो करो। दोनों जनरली नहीं शो करते हैं, दोनों शो करोगे देखो कंफ्यूजन क्रिएट होता है इस तरह से, राइट। तो दोनों में से कोई एक शो करो आप, दोनों में से कोई एक शो करो। उसके बाद होता है इनेबल हूवर करके ऑप्शन। हूवर मतलब क्या होता है ये मैं बताऊंगा जब हम इसको रन करेंगे तब। एंड इफ यू वांटेड शो टोटल, तो आपको बीच में नजर आएगा टोटल, ठीक है, बीच में नजर आएगा टोटल। अब टोटल से आप परसेंटेज दिखाओ, टोटल से वैल्यू दिखाओ कि आउट ऑफ 20 3 इतने हैं, 2 इतने, 4 इतने, 11 इतने, या ये दिखाओ, जनरली ऐसे ही होता है, या फिर परसेंटेज दिखाओ, ठीक है। सो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको दिखाना क्या है, ठीक है। उसके बाद में चार्ट का साइज मीडियम, लार्ज, टाइनी जैसा भी रखना है वो। एंड आफ्टर वंस यू हैव डन विद एवरीथिंग, ओके, ठीक है। ये देखो ये आपका चार्ट, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। एडिट 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 एडिट, समरी शो, एडिट चार्ट, हाँ। तो इसको थोड़ा सा छोटा, मीडियम एंड काफी बड़ा हो गया, इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, एंड ओके, हाँ अब ठीक है ये, ठीक है। अब देखो एक बार इसको रन करता हूँ पहले, फिर बताता हूँ। तो अभी जैसे कि आप पहले आपने रिपोर्ट बनाए, अब इसके साथ में आपका एक चार्ट कंपोनेंट ऐड हो गया। अब हूवर मतलब क्या होता है, ये देखो जैसे आप अपना कर्सर लेके जाते हो, है ना, कर्सर लेके जाते हो, तो आपको ये भी नजर आ रहा है कि आउट ऑफ 20 कितना है, 3 रिकॉर्ड है ऐसे जो ब्लैंक है, ठीक है, और परसेंटेज है 15 ना। आउट ऑफ 20 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसकी रेटिंग है कोल्ड, ऐसे टोटल 10%। 4 वार्म, वार्म है 4 20%,
हॉट है 11, 55%। ये होता है हूवर, ये माउस को हूवर करना बोलते हैं इसको। अभी क्या मैं यहाँ पे एक और कंपोनेंट ऐड कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे एक बार चार्ट ऐड कर सकता हूँ, या लाइन चार्ट, या फैनल? तो आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। ठीक है, तो चैट कंपोनेंट क्या होते हैं? चार्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट डेटा। हाँ, दिस इज समथिंग विच इज नॉट रिटन, तो आप अभी लिख रहे हैं तो अभी भी लिख सकते हो, या फिर चाहो तो बाद में लिख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज चैट कंपोनेंट? तो चैट कंपोनेंट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा। ठीक है, चैट कंपोनेंट इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ जो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है, कि भाई देखो रेटिंग के 3 है, हॉट बिना विदाउट रेटिंग वाले 3 है, हॉट रेटिंग वाले 11 है, वो सेम थिंग आई कुड सी ओवर हियर आल्सो। तो यहाँ या तो ऐसे देखे कोई उसको, है ना, ऐसा पूरा देखे स्क्रॉल करते, या फिर वो सीधा जाए इसके ऊपर, और हूवर अगर आपने इनेबल कर रखा है तो वो जैसे जैसे घुमाएगा कर्सर उसको समझ में आ जाएगा, राइट। और ऐसे भी समझ में आ रहा है, अगर नहीं कर्सर भी लेके जाता है तो उसको नजर आया आउट ऑफ 20 11, 11 है आपके, ग्रीन कलर है हॉट, ये ऑरेंज है वार्म, तो ऐसे भी नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो ये है आपका चैट कंपोनेंट। तो चैट कंपोनेंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दैट? इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर रिपोर्ट डेटा। अच्छा, कितने तरह के चैट कंपोनेंट्स होते हैं? देयर आर ऑल टुगेदर 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार चार्ट, एंड देन लाइन चार्ट, उसके बाद में, 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड, 1 मिनट जरा सा। कहाँ जा रहे हो आप? बाहर जा रहे हो? ठीक है, जाओ। ओके, द लाइन चार्ट एंड दिस पाई चार्ट, डोनट चार्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन इसमें से कोई एक कंपोनेंट ही ऐड हो सकता है रिपोर्ट पे, ठीक है। एक से ज्यादा कंपोनेंट रिपोर्ट पे नहीं ऐड होते, डैशबोर्ड पे होते हैं। तो मेजर डिफरेंस जो होता है जनरली लोग नहीं बता पाते। मैं आपको बता रहा हूँ 90% हमेशा जब भी मैंने पूछा मेरे को यही आंसर मिला कि चैट कंपोनेंट, डैशबोर्ड कंपोनेंट आर सेम, लेकिन ऐसा नहीं है। चैट कंपोनेंट उसको बोलते हैं जो रिपोर्ट्स पे लगाते हैं। डैशबोर्ड कंपोनेंट भी आप पढ़ने वाले हो, डैशबोर्ड भी रिपोर्ट से ही बनते हैं। मोर ओवर, डैशबोर्ड कंपोनेंट के लिए भी रिपोर्ट यही है, मतलब जैसे आप चैट कंपोनेंट समरी पे और मैट्रिक्स पे क्रिएट कर सकते हो, तो सेम। अभी आपको जब मैं डैशबोर्ड पे लेके जाऊंगा तो यही सेम चीज पढ़ाऊंगा कि आपने जितनी मैट्रिक्स रिपोर्ट बनाई है, आपने जितनी समरी रिपोर्ट बनाई है, आप केवल उन्हीं पर, यू कुड क्रिएट अ डैशबोर्ड only on summary report as well as on the matrix report, but you can't create it on the joint and tabular. कंसेप्चुअली सेम है, समझो, एक बहुत ही पतली सी लाइन है दोनों के बीच में, दोनों के डिफरेंसेस के बीच में बहुत बारीक सा मुद्दा है जो ज्यादा बड़ा नहीं है, हालांकि ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन है, डिफरेंस है, डिफरेंस जरूर है। हालांकि वो लाइन बहुत ही पतली है, मतलब काफी सारी चीजें कॉमन है। डैशबोर्ड कंपोनेंट और चैट कंपोनेंट कितने हैं? यही 7 है। डैशबोर्ड में थोड़े से और ऐड होंगे, 3 कंपोनेंट प्रोबेबली और ऐड होते हैं। तो पहला डिफरेंस अगर मैं कुछ देखना चाहूं तो वो है, तो जब हम डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। हालांकि ये 7 कंपोनेंट वहां पर भी हैं, उसके अलावा डैशबोर्ड पे ना कम से कम 2 से 3 कंपोनेंट और ऐड होते हैं। चलो वो एक अलग बात है। दोनों क्या है? दोनों ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। चैट कंपोनेंट भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, डैशबोर्ड कंपोनेंट भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसका? रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट पे जो डेटा मौजूद है, ये जो डेटा है आपका रिपोर्ट का, दिस रिकॉर्ड, दिस होल थिंग, ये डेटा जो आपका, इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है डैशबोर्ड कंपोनेंट, इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है चैट कंपोनेंट, ठीक है। लेकिन डिफरेंस बहुत छोटा सा डिफरेंस। अच्छा, दोनों एक और चीज कॉमन है, दोनों क्या है कि भाई इधर यू क्रिएट चैटबोर्ड, चैट कंपोनेंट या डैशबोर्ड, दोनों आपके समरी और मैट्रिक्स पे ही बन सकते हैं। दैट मीन्स टैबुलर रिपोर्ट और जॉइंट रिपोर्ट, इस पे ना तो चैट कंपोनेंट बनता है और ना ही आपका मैट्रिक्स का, आपका ना ही डैशबोर्ड बनता है। तो जैसे मैं कह रहा हूं ना, काफी सारी चीजें कॉमन है सिवाय एक चीज की, और वही पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। वो बहुत बारीक सा डिफरेंस है, उसको आइडेंटिफाई करना है हमने, क्या है वो? चैट कंपोनेंट, जैसे यहाँ बटन था ना, ऐड चैट, चैट कंपोनेंट्स किस पे ऐड होता है? मतलब अगर कोई ग्राफिकल कंपोनेंट जो कि रिपोर्ट पे ऐड होता है, जो दिख कहाँ रहा है ना, इफ आई रन दिस रिपोर्ट, तो मेरे को ये नजर कहाँ पे आ रहा है? अलॉन्ग विद द रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट है मेरी, and with this report, with this report I could see this component. तो if it is adjacently displayed, if it is side by side नहीं बोलेंगे उसको, top bottom ऐसा कुछ, so if it is adjacently displayed along with your report data, this is something called as chat component.
एंड मोर ओवर हम चैट कंपोनेंट भले ही साथ हो, यहाँ पे एक ही ऐड कर सकते हैं। देखो अगर मैं ट्राई करता हूँ इसको, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी डोनट था, मैं लाइन ये वाला ऐड करने की कोशिश करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये करता हूँ, ठीक है, और मैं ओके करता हूँ, तो उसके साइड में नहीं आएगा, एक्चुअली उसको रिप्लेस कर देगा ये। आप देख सकते हो पहले यहाँ डोनट चार्ट था, अब क्या नजर आ रहा है आपको, वर्टिकल बार चार्ट। तो यहाँ पे आप एक ही कंपोनेंट ऐड कर सकते हो चैट का। तो ये एक माइनर सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, अदरवाइज 90% फंक्शनैलिटी सेम है। वो आइडेंटिफाई करना है अपने। तो वो चीज देखो, इतनी बारीक बात थी, मैंने आपको समझाया। तो अगर आपसे कोई पूछे कल्चर के, देखो कुछ चीजें आपको हाईलाइट करेंगे इंटरव्यू पे। जैसा मैंने रिलेशनशिप से कहा था, ये चीज कि रिलेशनशिप में अगर आपसे पूछें कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स आर देयर इनटू द सेल्सफोर्स, यू नीड टू फर्स्ट स्टार्ट विद द काउंट। देयर आर 6 रिलेशनशिप, यहां से शुरुआत होगी आपकी। तो उन इमीडिएटली यू विल बी आइडेंटिफाइड। व्हाई? बिकॉज लोगों ने 3 बताया, 4 बताया, 6 किसी ने नहीं बताया। 6 बोलने वाला पहला शख्स आया, अभी अक्षय पाटिल बोल रहा है 6, कैसे आप आइडेंटिफाई होते हो? इन द सेम वे, 90% ऑफ द केसेस में आई माई सेल्फ हैज फील दिस। When I asked this, what is difference between chat component and dashboard component? Everyone has said me, sir, same hai. There is no difference. There is no difference between, this is one and same thing. Chat component is the second name of chat component is dashboard, or rather the second name of dashboard is chat component. It's one and same thing. Then they started telling me कि उसमें bar chart होता है, उस पे line chart होता है. I agree with all things. मैंने कहा ना कि there are 90% of the common functionalities between these two, but there is a minute difference in that. वो difference मैंने आपको यहाँ पे demonstrate किया है। अभी जब मैं आपको डैशबोर्ड पे लेके जाऊंगा ना, तो यू कुड सी कि आप 20 कंपोनेंट ऐड कर सकते हो डैशबोर्ड पे। यहाँ पे सिर्फ एक कंपोनेंट ऐड किया मैंने, जस्ट वन। इन द डैशबोर्ड वी हैव दिस फैसिलिटी दैट वी कुड ऐड 20 चैट कंपोनेंट, 20 ग्राफिकल कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं ऑन द डैशबोर्ड। यहाँ पे कितने ऐड कर सकते हैं आप? केवल एक। तो ऐसा छोटा सा डिफरेंस है। तो अगर रिपोर्ट पे जो ग्राफिकल ये डायग्राम जो आपने क्रिएट किया रिपोर्ट पे, जो कि रिपोर्ट के साथ ही डिस्प्ले हो रहा है, कि नीचे में रिपोर्ट दिख रही है, ऊपर में ये, हाँ इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ दिखाना है, तो है उसकी उसकी सेटिंग है, ये ऑफ कोर्स अबव द रिपोर्ट चाहिए या बिलो द रिपोर्ट, वो ठीक है, वो चलता, ठीक है। कुल मिला के मुद्दा ये कि रिपोर्ट के साथ दिख रहा है, या आप पहले रिपोर्ट दिखेगी, नीचे आओगे तो ये दिखेगा, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। हाँ लेकिन हाँ, मुद्दा ये नहीं है कि कहाँ दिख रहा है, कहाँ ऊपर या नीचे। मुद्दा ये है कि हम रिपोर्ट के साथ देख रहे हैं इसको। तो रिपोर्ट के साथ देख रहे हैं, दिस इज व्हाट चैट कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट ऐड हो सकते हैं? There are 7 components, 7 types of component could be there, but on the report you could add only one component. Out of that 7, you could add only one component, not more than that. ये है चार्ट, ये है चार्ट कंपोनेंट। अब मैं आपको आगे चल के लेके जाऊंगा, ये अभी समरी और अपना सॉरी मैट्रिक्स जॉइंट हो जाए, उसके बाद जब मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा, डैशबोर्ड में यू विल सी 20 कंपोनेंट ऐड करने की फैसिलिटी अपने। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। चलिए, टुडे आई एम स्टॉपिंग इट राइट नाउ। कल मैं स्टार्ट करता हूँ बकेट फील्ड से। सोचा था आज ही स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन लंबी चली जाती है। एनीवेज, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।